So I have a motorcycle with me that has actually changed everything. ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कुछ लोगों को शायद प्लेन या बोरिंग लगे, but don't go by its looks. It is the Yamaha MT-07. मैंने जब ये मोटरसाइकिल अपने इंस्टाग्राम फीड पर देखी थी, आई न्यू दैट आई हैड टू रिव्यू इट. दिस मोटरसाइकिल इज़ ओन्ड बाय दानिश सदीक, हु इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, एंड उन्होंने रिसेंटली ये मोटरसाइकिल ख़रीदी है. शोरूम ने इस मोटरसाइकिल को 2019 में इंपोर्ट किया था, बट द मॉडल इज़ 2016 वन. वाई इज़ दिस मोटरसाइकिल सो स्पेशल? वेल, अगर हम इसके इंजन की बात करें, इट कम्स विद एन इनलाइन ट्विन सिलेंडर 4-stroke लिक्विड कूल्ड इंजन विद अ 6-speed ट्रांसमिशन सिस्टम. आसान लफ्ज़ों में इसमें 6 गेयर हैं एंड ट्विन सिलेंडर का इंजन है. बट इन ऑर्डर फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू वाई दिस मोटरसाइकिल इज़ दैट स्पेशल, मुझे आपको थोड़ा सा इंजन के बारे में बताना पड़ेगा. सो हाउ डज एन इंजन एक्चुअली वर्क? देखो, इन बेसिक टर्म्स इंजन एरो फ्यूल को लेता है, इट इग्नाइट्स इट, कंप्रेसेस इट, जिससे एनर्जी बनती है और एक व्हीकल फॉरवर्ड मूव करती है. बट दिस इज़ द CP2 इंजन which is called the cross plane cylinder 2, जिसके अंदर है engine. And I have to explain to you why this engine has not changed in the last 10 years and why so many companies are now asking their motorcycles to have this engine. But for that, we need to go back and understand how an engine works internally. So inside the engine, there are 2 cylinders, or we can say जिसके अंदर piston होता है, and there are 3 types of ways where you can arrange them. In the 360-degree engine, जो दोनों piston हैं वो एक साथ ऊपर और नीचे जाते हैं with the same type of order. And in the 180-degree type, what happens is कि जब एक piston ऊपर जा रहा होता है, दूसरा भी नीचे आ रहा होता है, which is very common in many engines. But in the CP2 engine, you have the 270-degree orientation, जिसके अंदर जब एक piston थोड़ा सा ऊपर जा रहा होता है, तो दूसरा वाला भी ऊपर से लेके थोड़ा नीचे आ रहा होता है, which is clearly explained in this animation. So it's like an heartbeat sound, dhag, dhag, dhag. And I'm going to now tell you why this arrangement of the engine is very special. It is special because let me show you something. Can you hear this? Yeah. So, as you could hear that is actually the CP2 engine that you can hear at its finest. इसका जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ना, थोड़ा सा भी जब इसको आप रेव करेंगे, इसका जो टॉर्क है, that speed, the acceleration, that first pick is so quick that your heart rate goes to 180 beats per minute. And this is all the magic of the way the cross plane crankshaft system is positioned. Torque is actually the force. Like imagine आपके पास एक bottle है और जब आप उस bottle का cap खोलते हैं, that twisting force is actually called torque. And for this particular motorcycle, the torque is 68 Newton meters, which means कि I still have to understand कि ये पहले gear में कितनी speed पकड़ेगा. And what about its horsepower? Well, for the horsepower, don't worry. मैं इस वीडियो को एक फिज़िक्स का लेक्चर नहीं बनाने वाली. हॉर्स पावर इज़ एटलीस्ट 73.4 और अराउंड अबाउट 74 हॉर्स पावर की ये मोटरसाइकिल है. इट्स क्रेजी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. सो ये मोटरसाइकिल के अंदर अपसाइड डाउन फॉर्क्स नहीं है, जो आपने अक्सर मेरी लीफान जुल्फ़ी के अंदर देखा होगा. इट कम्स विद दी नॉर्मल टेलीस्कोपिक फॉर्क्स. इसके सस्पेंशन के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है कि आइदर दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज व्हेन दे टेक इट फॉर लॉन्ग टूर्स दे सेट कि उनको काफ़ी झटके लगते थे. सो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट हैव एक्चुअली ओन दिस मोटरसाइकिल हैव अपग्रेडेड इट. The good thing about this motorcycle is that you can actually find parts of it online on Alibaba, and अगर आप forums में भी जाएं तो आपको इसके parts मिल जाते हैं to modify it. The other thing is that this motorcycle does come with an ABS option, but ये वाली जो दानिश ने ली है, it is a non-ABS one. इसके अंदर dual आपको disc brakes नज़र आ रहे होंगे in the front, one at the back. It's basic. So I'm more of a ABS fan. मुझे अब ABS की इतनी आदत हो गई कि मुझे थोड़ा डर लगता है जब मैं कोई और मोटरसाइकिल के ऊपर हूँ. Let me also tell you about the ground clearance. It's approximately around 140. The exact number is around 145 to 148 millimeters. So yeah, I'm actually imagining this, taking it on a long route, and I think that
the engine can get injured. Because if you notice, ये एक naked street motorcycle है, and ये हम हैं जो 70, 150 और 125 को पहाड़ी इलाकों में लेके चले जाते हैं. But these motorcycles are designed for just the street. तो अगर आप एक street rider हैं and you just want to have a boys night out and just ride it in Lahore, so this is a perfect motorcycle क्योंकि एक तो ये attention भी grab करेगी and people are gonna actually stop you and look at it and ask you ये कहाँ से ली. So you can see it's beautiful. There is no fairings over here. ये naked है. And then the most asked question जो सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाती है कि मैम ज़ेनिथ प्लीज़ आप हमें बताएं इसका फ्यूल क्या है, फ्यूल का बताएं. तो इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी वो 14 लीटर्स है, लेकिन फ्यूल एवरेज क्या है वो मैं नहीं बताने वाली. उसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट जिनकी ये बाइक है. सो आर यू रेडी फॉर द ऑडियंस टू आस्क यू कि इसने गलत फ्यूल एवरेज बताई है? नहीं मैं ठीक बताऊंगा. फ्यूल एवरेज जो है वो तकरीबन विद इन सिटी जो है 14 लीटर करती है, 14-15 बस. अगर लॉन्ग रूट है तकरीबन 19-20 कर लेगी, 19-20 करेगी. अच्छा, एग्जॉस्ट इसका चेंज हुआ है जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है. तो अभी ये फिलहाल तकरीबन स्ट्रेट पाइप है. बट पीपल डोंट नो व्हाट दैट इज. आसान इधर से आके दिखाएं. ये आसान लफ्ज़ों में लोगों को बताना पड़ेगा. अच्छा, टेल मी मोर अबाउट द मोटरसाइकिल Danish. Like, let's just go around it. I'm seeing it's beautiful. Why did you buy it? Like, इतने सारे ऑप्शंस थे, अब तो बेनेली भी आ गई है, चाइनीज़ भी है. बेसिकली मेरा पर्पज़ ये होता है राइडिंग का कि एक ऐसी बाइक हो जिसका लो एंड टॉर्क अच्छा हो. दूसरा नेकेड इसलिए ताकि विद इन सिटी राइड्स में मुझे हीटअप का प्रॉब्लम ना हो. सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने ये बाइक की थी. इसकी मनूवरिंग अच्छी है स्ट्रीट पे. मतलब मुझे कभी भी ये सोचना ना पड़े कि यार मेरे पास कोई सुपर बाइक खड़ा हुआ है, मैंने उसको निकालना है तो मैं उसको सोचूं. इसके मुझे सोचना नहीं पड़ता, इस पे जाके दही भी ले आओ, कोई मसला. अच्छा, मतलब कि ऑल्सो यू वांटेड टू इम्प्रेस पीपल, इजंट इट? कह सकते हैं. यू वांटेड टू. अच्छा, सो हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर? बिकॉज आई थिंक एक्सपेंसिव होगी, राइट? इतनी ज़्यादा नहीं है. मैंने बाई की अराउंड 24 लाख की. चलो, इतनी ज़्यादा नहीं है एज पर Danish. सो अगर इसने आपका उधार देना है तो देख लो. ये है लोग जो है वो 60-60 लाख की बाइक्स भी लेके फिर रहे हैं. तो यार ये बात तो है. तो अच्छा, तो इतनी ज़्यादा नहीं, 24 लाख. 24 लाख. एंड व्हाट अबाउट कहाँ से ली? एंड यू नो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि हम लोग बाइक्स इसलिए नहीं लेना चाहते, स्पेयर पार्ट नहीं मिलता मेंटेनेंस. हाँ जी, ये बहुत कॉमन है. एग्जैक्टली ऐसा होता है. असल में ये मैंने बाई की है ऑब्वियसली किसी बंदे से बाई की है, बट दिस इज़ USA इम्पोर्ट. ओके. तो पाकिस्तान में आपको पता है कि शोरूम्स जो हैं वो नहीं हैं. Yamaha YBR जैसे 0 मीटर मिलता है, उसके पार्ट्स हमें रेडीली अवेलेबल मिल जाते हैं. इन बाइक्स के नहीं मिलते. तो इसके लिए हमें अली एक्सप्रेस पे जाना पड़ता है, या फिर बाहर अगर आपको कोई जानने वाला है आप उसको डीलरशिप पे भेज के ओरिजिनल OEM पार्ट आप इंपोर्ट करवा सकते हैं उनके थ्रू. अच्छा, मतलब अली बाबा में यू कैन एक्चुअली फाइंड द पार्ट्स, राइट? जी, उसके अंदर एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं और इनके पार्ट्स भी मिल जाते हैं. बट OEM पार्ट जो ओरिजिनल Yamaha का होता है वो वहाँ पे थोड़े से कम होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन मिल जाते हैं. इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी मॉडिफिकेशंस भी की हुई हैं. सो बेसिकली दिस इज़ नॉट लाइक अ स्टॉक मोटरसाइकिल. आई थिंक यू एडेड समथिंग हियर, यू वर टेलिंग मी. यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो ये भी स्लाइडर लगे हुए हैं इसके ऊपर. बाकी रिम स्टिकर्स लगाए हुए हैं. वाओ. और ब्लॉक्स का एग्जॉस्ट का चेंज किया हुआ है, ऑयल का कैप चेंज किया हुआ है, ब्रेक ऑयल का. इसके अलावा रेडिएटर के गार्ड लगा हुआ है, रेडिएटर पाइप्स का, और क्रैश गार्ड लगे हुए हैं. आफ्टर मार्केट जो है लोगो लगाया हुआ है. अच्छा, आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है? आई थॉट ये लगा होता है. ये चेंज हुआ है. ओह वाओ. ओके, सो दिस इज ओनली द थिंग्स यू हैव डन या और भी है? इसके अलावा साइड मिरर्स इसके चेंज हैं, इसका ऑयल कैप चेंज हुआ है, लीवर्स चेंज हैं. तो सब कुछ ही चेंज कर दिया? जी. आफ्टर मार्केट इसके इंडिकेटर्स हैं, आफ्टर मार्केट वाइजर है, और फ्रंट पे भी स्लाइडर्स लगे हुए हैं. So where did you get all of this from AliExpress. From AliExpress. And I actually want to show you something else. Yamaha is actually known for this specific thing in their MT standard की जो मोटरसाइकिल है. I'll show you. This is that. It's like a speaker, लेकिन basically आप कह सकते हो ये बाइक का ही स्पीकर है. Because the way the air intakes and when it passes through this net shield, the voice, यार इसकी जो आवाज़ है, that is actually the iconic MT की जो एक आवाज़ है. Let me start the motorcycle. मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाना चाहती हूँ, एक दफ़ा सुनो. Oh wow! And then listen. That sound. Oh wow! I live in a colony, so
I have to be extra careful क्योंकि हाँ बच्चे हैं. But did you hear that, guys? Did you hear that? And this is a very short review of the MT. I wish I could find more time with it. One of the things I noticed when I was on it is कि seat बहुत comfortable थी. Danish, I think आपने इसकी seat भी change की है, right? Oof. यार इतनी comfortable थी. I was like ये तो मेरा दिल कर रहा है मैं टूर पे ले जाऊँ. इतनी comfortable थी. And this is that motorcycle जो actually आपको T7 में नज़र आती, which is my dream motorcycle. Like T7, I did ride it and I was in love with it. And the same CP2 engine की एक और ख़ास बात ये भी है that it can be taken out and put on another bike which is of a 700-800 cc categories. आप बहुत सी motorcycles में यही आप engine देख रहे होते हो, CP2, the 270-degree magic. This was life around Danish's MT-07 Yamaha motorcycle and I'm a big fan. If only I can steal it from him. You never know, I can. In all of my reviews, I try कि मैं आप लोगों के पास अच्छी motorcycles review करूँ. A lot of thank you, Danish, that आप इधर आए and you gave me your time and the motorcycle. Ride safe, wear a helmet, please. And I'll see you in the next Euro video.